آپ کریں سہیل صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہم لائیو آ چکے ہیں. عاصم کلیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ سننے والے تھے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جو میں نے تھم نے لکھا کہ ممتاز مفتی کی قبر کے ساتھ ایک صندوق تھا اور اس صندوق میں کچھ خطوط تھے یا اس میں کیا تھا اور وہ کیوں رکھا گیا تھا، لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ ایسی بہت سی باتیں تو کی جاتی ہیں مگر اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی اور صرف ایک مسٹری کریٹ کر دی جاتی ہے. عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہی بات ہم شروع میں ہی جان لیں بجائے اس کی کہ ہم پرولونگ کرتے جائیں اور آخر میں پوچھیں. مگر سب سے پہلے میں یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ عاصم صاحب آپ نے ممتاز مفتی کو کیسے کھوجا، کیسے پڑھنا شروع کیا؟ سہیل صاحب بہت شکریہ کہ ایک تو آپ نے مجھے اس فارم پہ آنے کی پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دی اور آپ سے تو زمانے سے برسوں سے رابطہ ہے، جو گائے بگائے کبھی بیچ میں طویل وقفے آ جاتے. مفتی صاحب سے میری جو محبت کی داستان ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ میرے گھر میں میرے والد صاحب تھے، ان کو ادب سے شوق تھا اور کتابیں ہوتی تھی، لیکن مفتی صاحب سے جو میرا دلچسپی جو میری برقرار رہی اور جو بنیادی وجہ بنی مفتی صاحب سے محبت کی، میرے گریجویشن اسلام آباد کی ہے. میں اسلام آباد میں تھا تو میں نے کالج کی لائبریری سے علی پور کا ایلی جو ہے وہ میں نے پہلی اردو کی کتاب ایشو کروائی اور یقین کریں کہ میں بغیر کسی مبالغے کے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی ایک رات اور 2 دن جو ہے، ایک رات پوری جاگ کر اور 2 دن میں وہ ناول ختم کر لیا. تو مفتی صاحب سے میری دلچسپی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ علی پور کا ایلی کا مطالعہ بنا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کی ممتاز مفتی سے کوئی ملاقات بھی ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب سے میری ملاقات ہے لیکن وہ ملاقات نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ملاقات بھی ہے اور ملاقات نہیں بھی ہے؟ میں اس کی میں آپ کو داستان سناتا ہوں، وہ دلچسپ کہانی ہے. 95 کی بات ہے جو مفتی صاحب کا انتقال کا سال، اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. تو میں علی پور کا ایلی اور دوسری کتابیں شہاب نامہ بھی میں تب تک پڑھ چکا تھا. وہ کتابیں پڑھ میں مفتی صاحب کے گھر گیا، لیکن علی پور کا ایلی پڑھنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد 2-4 ماہ بعد میرے پاس علی پور کا ایلی بھی تھی. اور میں نے جب مفتی صاحب کے گھر دروازے پر جو F62 میں ان کا گھر تھا، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، تو میں نے گھنٹی دی تو مفتی صاحب خود دی آئے. اس وقت سلوپ ہوتی تھی ان کی گھر کے اندر جانے کی. مجھ سب سلوپ سے بہت دھیما دھیما بغیر کسی سہارے کے، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے یورین کی بوتل پکڑی ہوئی اس طرح کر کے، بال اڑے ہوئے جس طرح روئی ہوتی اور ایک دانت نکلا ہوا اور بہت میلے کچیلے گرے کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر شاید ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ مجھ سے ہی ملنے آیا. تو بغیر سلام کے اور بغیر کچھ بھی کہا ہوئے ادھر میرے ہاتھ رکھا اور مجھے کہتے اوئے میں اس میں لے آئے، اوئے تو اس میں لے آیا جیسے کہ میں جا رہی سی. تو میری لڑکپن کی عمر، ایک بدتمیزی سمجھ لیں یا شعور نہیں تھا کہ ان لوگوں سے کس طرح ملنا چاہے. تو میں نے کہا اچھا جی میں پھر واپس ہی چلا جانا. نہ انہوں نے مجھے روکا نہ میں روکا، میں واپس آ گیا. بس اب اس ملاقات کو یہ کہہ کہ میں نے ان کو دیکھا ہوگا، صرف یہ ملاقات ہے بس. اچھا جدھر عاصم صاحب کا ذکر آتا ہے وہاں پہ قبر کے ساتھ رکھا صندوق سامنے آ جاتا ہے. یہ مکمل کہانی بتائیے، کیا تھی وہ صندوق، کس نے رکھ دیا، اس کے اندر کیا تھا؟ اچھا یہ بھی ایک دلچسپ، میں نے مفتی صاحب کی کسی کتاب میں شاید پڑھا، غالباً الکھ نگری میں پڑھا کہ صاحب مزار جو ہے وہ سوار کو مزار پر موجود ہوتا ہے. تو میرا جو کالج تھا وہ G6 میں تھا، ICB اسلام آباد کالج فار بوائز. تو بالکل اس کے ساتھ ایک ویگن چلتی تھی جو ادھر قبرستان والی سائڈ پہ جاتی تھی. پبلک ٹرانسپورٹ کچھ بھی ہو، میں اگر سوار کو اسلام آباد اپنے کالج کے ہاسٹل میں موجود ہوں یا اسلام آباد شہر میں بھی موجود ہوں، میں سوار کو مجھ سے اپنی قبر پہ جاتا، فاتحہ پڑھتا. ادھر ایک صندوقچہ پڑا ہوتا تھا ٹن کا، جس کی تصویر بھی شاید میں نے کہیں اپلوڈ کی تھی. اچھا اس میں نے پہلی 2-4 دفعہ تو نہیں کھولا، میں نے سمجھا کوئی چندہ بندہ ہوگا، میرے پاس پیسے کہاں کہ میں اس میں کچھ ڈالتا. تو میں نے تو اس خوف سے نہیں کھولا کہ کچھ پیسے ویسے کا معاملہ ہوگا.
खैर 2-4 सवार के बाद मैंने खोलने की जसारत की, उसमें सपारा तो एक आधे रह गया था, बाकी वो खतूत उसमें होते थे, मुख्तलिफ लोगों के खतूत। और सुहेल साहब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किन किन लोगों के खतूत होते थे। उसमें से कुछ जो थे वो पेशेवर मुजरिम थे, कुछ लोगों ने जेल से खत अपने घर वालों को लिखा कि आप मुफ्ती साहब के कब्र पे जाइए और ये खत उधर छोड़ कर आइए। कुछ बहुत नामवर लोगों के खतूत, कुछ हमारे शायरों अदीबों के खतूत थे, और उसमें कुछ शायर और अदीब ऐसे थे जिसको हम कहते हैं कि वो मंतकी सोच रखते, लॉजिक्स पे देखते। वो मरने के बाद एक बंदे को, ये भी एक अलहदा, तो बहुत मेरा दिल ललचाया कि इस पे तो शायद मेरा हक बनता है मुफ्ती साहब की मोहब्बत की वजह से। तो पहले तो मैं जो उधर कब्रिस्तान में गुरकन फिर रहे होते थे, उनसे बच बचा के एक आध खत उठा लेता, जो मुझे अच्छा लगता मैं वहां बैठ के पढ़ता रहता। सिपारा उठाता, सिपारे के अंदर खत रखता और वो पढ़ने लग जाता, और एक आध खत वहां से लेके निकल आता। तो एक दफा मेरा अक्सी साहब से जो है इस मामले में बात हुई, तो फिर मैं थोड़ा दिलेर हो गया। मैंने कहा ये तो, और ऐसे लगता था कि मुझसे मेरे सामने बैठे, मैंने आंख मारी और खत लेके उड़ गया। अब मेरा उनकी कब्र पे जाने का बुनियादी मकसद वो खत उठाना रह गया। वो कुछ अरसे बाद मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैं अपनी तालीम के लिए लाहौर आ गया। तो कुछ अरसे बाद में गया तो वो संदूकचा गायब, खत मैं सारे उठा चुका था, मैं उसकी जो कहते ना कि अपने हाथ की सफाई में दिखा चुका था, लेकिन वो संदूकचा गायब था। फिर मुझे अब्दाल बेला साहब से मुलाकात हुई, मुफ्ती साहब के हवाले से मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला मैं। मेरी अब्दाल बेला साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो संदूकचा उन्होंने ही वहां रखवाया था, और उसमें सिपारे उन्होंने लिखवाए थे। सिपारों के बाद जो दास्तान वो मैंने आपको सुनाई, और वो कुछ खत मेरे पास रह गए, कुछ नकल मकानी की वजह से इधर उधर हो गए, जो मैं मेरे पास है उनको किसी तौर में अब मैंने मुरतब कर लिया, ये फाइल मैंने कंपाइल कर लिया। ये है कोई एक दिलचस्प खत बताएं कि वो उन खतों में क्या था, कुछ सिपारों में रख के पढ़े, कुछ घर ले आए, कोई ऐसा खत, कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई हो कि उन खतूत के अंदर क्या था। मैं अभी एक खत आपको पढ़ के, मेरे पास वो फाइल पड़ी है, वो फैसलाबाद से एक जेल में कैदी था, उसने वो खत मुफ्ती साहब के नाम लिखा, और वो उसके घर वालों ने वहां पर यकीनन छोड़ा होगा क्योंकि वो खुद जेल में था। मेरा गुमान है कि उसने या तो किसी दोस्त को दिया होगा या किसी और को दिया होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस खत को कैमरे के सामने करूं, और अगर आप इसका एक क्लिप अगर किसी तरह, सुहेल साहब आपको ये देखिएगा, फोकस हो रहा है कैमरे पे? सर फोकस तो उस तरह से पढ़ा नहीं जा रहा, मगर ये नजर आ रहा है, लिखाई समझ में आ रही है। अगर आप ही पढ़ दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक सतरी खत भी है, वो ये देखिएगा, इस एक स्ट्रिप पे 2 खत लिखे हुए हैं। अब ये जो पहला इंतहाई मुख्तसर खत है, ये किसी दिलबर का है। जो मकतूब निगार है वो दिलबर है, और मकतूब अलह जो है वो दुनिया से पर्दा कर चुके, वफात पा चुके मुमताज मुफ्ती। एक सतर का खत है, मैं पहले वो पढ़ता हूँ। मोहतरम मुमताज मुफ्ती साहिब, आदाब। सर आप शहाब से हमारे लिए रिक्वेस्ट करें कि हमें ख्वाब में मिले, शुक्रिया दिलबर। उसके नीचे 2 लाइनों का एक और खत है जो अब्दाल बेला का है, और अब्दाल बेला की लिखाई जिन दोस्तों ने देखी हुई है उनको अंदाजा है कि वो फौरन पहचानी जाती। उसमें अब बेला साहब लिखते हैं, ये 31/10 है, तारीख इस पर है, अब सन नहीं है। मुफ्ती जी कब आएंगे, कब बुलाएंगे, कब मिलाएंगे। ये 3 खतों सतूर पे मुश्तमिल अब्दाल बेला का खत है। अच्छा, जिस खत का मैं जिक्र कर रहा था कि जो जेल से है, पिछले 2 खत तो बरसत के इतने मुख्तसर खत भी थे उसमें, और तवील खत भी थे। तो ये जेल से एक कैदी है, उनका नाम है मोहम्मद असलम शहजाद। वो मोहम्मद असलम अदरीस, सॉरी, वो खत में लिखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काबिल सद एहतराम इज्जत माब जुनाब मुफ्ती साहब मरहूम मकबूर रहमतुल्लाह अलैह,
अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश है कि हकीकत और सच्चाई से बिल्कुल नाआशना हूँ, भटका हुआ, हकीर और नहायत गुनाहगार हूँ। ज़हन चीज़ों को मानने से पहले जानना चाहता है और दिल जानने से पहले मानने पर मजबूर करता है, लेकिन ना समझ हूँ, कुछ समझ भी नहीं सकता और बहुत कुछ समझना भी चाहता हूँ। मैं खुद को इस्लाम की निशाते सानिया के लिए पेश करता हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती कि मैं इस वक्त फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में किसी तरह से वहां से छुटकारा मिले। आप शहाब साहब से राब्ता करें और मेरे बारे उनसे बात कीजिए ताकि हकीर इस्लाम की निशाते सानिया के लिए अपना हिस्सा डाल सके। अल्लाह ताला से सफारिश करे कि मुझे कबूल फरमाए। न कुछ मांगने का सलीका है, न कुछ कहने का ढब है, अदाब से वाकिफ नहीं और बहुत मामूली सा इंसान अपने आप को इस काम के लिए पेश करना चाहता है। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं होने दूंगा, खसूसन बिलखसूस, और दीन की फलाही का मुतमन्नी भी हूँ। वस्सलाम मोहम्मद शहजाद अदरीस। इस तरह के खत आते थे। फिर उसमें कुछ नज़में होती थी। बहुत हमारी एक बहुत अच्छी शायरा है उर्दू नज़म की, बल्किस रियाज, उनका शायद मुफ्ती साहब ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपने किस्से खाकों के मजमूए में उन पर मजमून भी लिखा हुआ। उनकी नज़में थी जो बहुत तवील नज़में थी और उसमें तखातुब जो था वो मुफ्ती साहब को हवाला बनाकर बहुत सारे लोगों से किया गया। तो बल्किस रियाज की एक नज़म जो उसका जो बुनियादी ख्याल है कि मैं आपको हवाला बनाकर, आप वहां पर फला फला आदमी से मिल रहे होंगे जो बड़े शायर थे, उनको मेरा सलाम कहिए। वाह क्या बात है। अच्छा आसिम साहब, ये एक आपने खत बताया जो कि अब्दाल बेला का था। अब्दाल बेला ने ही संदूक को रखवाया और एक खत उन्हीं का था। तो ये जी, क्या जो मिस्ट्री है? उन्होंने खत क्यों लिखा? देखे, वो खत में सिर्फ 3 लाइनें हैं। 3 लाइनें क्या, मुफ्ती जी कब आएंगे, कब बुलाएंगे, कब मिलाएंगे, ये 3 सतूर पर उनका मुख्तसर तरीन खत जो मुझे वहां से मिला वो यही है। और ये कोई कुछ इंच की पर्ची होगी, इतने इंच बाई इतने इंच, जिस पर वो लिखा हुआ। अब देखे, बेला साहब को भी मुफ्ती साहब जो है वो मरने के बाद, जिस तरह मुफ्ती साहब जिनसे बहुत प्यार करते थे, उनसे जो वो चालबाजी, एक लफ्ज जो हमारे यहाँ वो करते थे, बेला साहब से भी वो कर गए कि बेला साहब ने तो खत लिखा, संदूक रखा सुपारों के लिए, मुफ्ती साहब ने चक्कर ही और चला दिया, सिपारे विपारे नहीं, मैं कुछ आने दो लोगों को मेरे साथ बातचीत करने, सिपारे पढ़ होते रहते, वो पढ़े ही जाते हैं। तो बेला साहब खुद संदूकची में खतूत देखकर यकीनन हैरान रहे होंगे कि मैंने रखवाई किस लिए थी और हो क्या रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर। ये तो जबरदस्त बात है। अच्छा आसिम साहब, ये जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं कि बड़े लोग और नशाते सानिया के हवाले से, तो आपने इतना करीब देखा, उनके हवाले से बहुत से लोगों से मिले, तो मुमताज मुफ्ती के रूहानी पहलू के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो क्या थे, रूहानियत क्या थी? सुहेल साहब, एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि रूहानियत के हवाले से बात करना मेरा मनसब नहीं है, न मैं अपने आप को उसका अहल समझता हूँ कि मुफ्ती साहब रूहानियत के किस मकाम पर थे। मैं इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो भी हमारे दोस्त मौजूद है, आप सुन रहे, बाकी दोस्त सुन रहे, कि जब तक आप खुद रूहानी तजर्बे से ना गुजरे, आप इन चीजों को मान नहीं सकते। तो मुफ्ती साहब के मिलने के बाद मेरे से कुछ ऐसे तजर्बात हुए जिनको मैं पहले इत्तफाक कहता था कि जस्ट महज इत्तफाक है, लेकिन वो जब बहुत ही तवातर से होने लगे तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, कुछ और चीजें हमारे यहाँ मौजूद है जिनको हम रूहानियत या मेटाफिजिक्स या माबादुल तबियात, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, वो चीजें होती है। और मैं खुद, जैसे मैंने अर्ज किया कि मुफ्ती साहब के हवाले से मुझे कुछ बुजुर्गान से मिलने का, कुछ अच्छे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ,
जिनका मेरी ज़िंदगी पर बहुत असर है। मैंने उनसे बहुत फैज़ उठाया। कुछ तफ़सील बताएँ कौन लोग थे और वो रूहानियत के बारे में क्या कहते थे, ख़ास तौर पे निशात सानिया के बारे में? देखिए, रफ़ीक अख्तर साहब से लेकर और बाद में जितने मैं लोगों को मिला, वो निशात सानिया के बारे में तो बहुत ही मुतमईन है। मैं अक्सर अर्ज़ करता कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। वो कहते थे ये दुरुस्त हो रही, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और फिर वो बार-बार जो अलख नगरी ने बरी इमाम साहब के हवाले से मुफ्ती साहब की तहरीर है, उसका हवाला देते कि देखो ये इतने 100 बरस कबल तसनीफ लिखी गई और इसमें ये चीज़ें मौजूद है कि एक शहर बनेगा, उसका नाम इस्लाम पर होगा, मैं शहर की हदूद से बाहर होऊंगा, उस शहर में बेशुमार सांप होंगे और किसी आदमी को सांप नहीं डसेगा वगैरह वगैरह। तो ये सारे वो कहते हैं इसके बारे में तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं जब से मैंने होशो हवास संभाला पाकिस्तान को, मैंने खाई की तरफ ही जाते देखा और अब भी जा रहा है। बल्कि स्पीड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही। लेकिन वो सब लोग कहते थे कि नहीं, इधर से ही सारा कुछ होगा, यही होगा जो उन्होंने लिखा है वो दुरुस्त लिखा है। जो रामदीन वाला मजमून है, जिस जो उनका पाकिस्तान रामदीन मजमून में जो मजमून है, ये सारी चीजें सब इसके इसके सब कायल थे। कहीं ना कहीं वो इख्तलाफ करते होंगे, लेकिन निशात सानिया और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से उनकी दूसरी राय ही नहीं थी, इख्तलाफ तो दूर की बात। अच्छा, एक चीज़ ये है कि 1965 के हवाले से जिस तरह रूहानियत की बातें की गईं, उस पे साइकोलॉजिस्ट और बाकी लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने जो बातें की, उनको आप कोल्ड वॉर लें या एक साइकोलॉजिकल वार लें, उसका नफ्सियात से ताल्लुक नहीं है। वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे थे, कश्मीर रेडियो के लिए काम कर रहे थे। उसे नफ्सियाती हरबा समझना चाहिए, ना कि नफ्सियात। आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें तो बहुत वाजे है कि मुफ्ती साहब उस वक्त खुद, जैसे कि सब दोस्त जानते हैं, नफ्सियात की किताबें पढ़ रहे थे और सरकार के नौकर भी थे, सरकार में मुलाजमत कर रहे थे। लेकिन इन चीजों की जो 65 वाली जंग से हमारे यहाँ, 65 वाली जंग के हवाले से हमारे यहाँ जो रवायात और जो हकायात का सिलसिला है, वो उन लोगों की तरफ से भी तो उसको जो है तस्लीम किया गया, जो बिल्कुल दरवेश सिफ्त लोग थे, जिनका न सरकार से कुछ लेना देना था, न जो और न जो जंग के बाज़ाब्ता माने समझते थे। उन्होंने भी देखा कि कोई ना कोई गैर मरई कुव्वत जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद कर रही है। मुत्सब के हवाले से, ये बाकी दूसरे लोगों के हवाले से तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन कितनी सारी रवायात हमने अपने बुजुर्गों से सुनी, अपने इलाकों से सुनी कि 65 वाली जंग में ये हुआ, जो नाकाबिले यकीन लगता है। तो ये रवायत और हकायात तो सिर्फ मुफ्ती साहब ने बयान नहीं की, बल्कि और बहुत सारे लोगों ने की है, जो ना सरकार के मुलाजिम थे, ना तनख्वाह लेते थे और ना नफ्सियात से आगाह। तो ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, आसिम साहब, आपने ना सिर्फ मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा, मुमताज़ मुफ्ती पर लिखी बहुत सी किताबें पढ़ी। तो आपने क्या पाया कि बाकी लोग जब तज्ज़िया करते हैं, कितना वो बैलेंस्ड होता है और वो कैसा पाते हैं मुमताज़ मुफ्ती को? सुहेल साहब, में एक चीज बहुत मुझे यकीन की हद तक गुमान है कि मुफ्ती साहब से मुतलका और मुफ्ती साहब की जितनी किताबें मेरे पास है, लाहौर की हद तक तो मुश्किल है। मेरी लाइब्रेरी में जो गोशा मुमताज मुफ्ती या मुमताज मुफ्ती सेक्शन है, उसमें कम बेश कुछ 100 के करीब कुतब, जराइद, खत, मुख्तलिफ चीजें मौजूद है। और मुझ का जो, देखिए उन किताबों में ज्यादातर जो है शख्सियत पे भी मजामीन है। उसमें मुफ्ती साहब को सारे ही जो है वो उनकी इंसान दोस्ती, पाकिस्तान दोस्ती को तो सब तस्लीम करते हैं। बाकी कई लोगों ने उनसे किसी न किसी जगह पे रूहानियत के हवाले से इख्तलाफ किया है। नजरियात का इख्तलाफ एक अलहदा चीज है, लेकिन मुफ्ती साहब की इंसान दोस्ती, अदब दोस्ती और पाकिस्तान दोस्ती से किसी को इख्तलाफ नहीं। मुफ्ती साहब के बाकी जो उनके फन पे बात की गई है, मतलब शख्सी हिस्सों के अलावा जो किताबों में उनके फन पर बात की गई है,
उसमें भी जो है वो सारे मुफ्ती साहब को बड़ा अदीब तस्लीम करते हैं। मुफ्ती साहब ने कई चीजें जो है वो उर्दू अदब में लिखने वालों के लिए वो एक ट्रेंड सेटर साबित हुए। मसलन नफ्सियात को पेश खेमा बना के या नफ्सियात को बुनियाद बनाकर मुफ्ती साहब ने कहानियां लिखी। शख्सी खाकों की जो उनकी है उसमें जो भी उनका दोस्त था उसकी अच्छाई और बुराई जो है वो साथ साथ चल रही। मतलब उन्होंने उसके अलावा फिर उन्होंने मॉडर्न कहानियां लिखी जो अपने नवासों और पोतों से वो जब उन्होंने देखा कि ये मोटरसाइकिल दौड़ा रहे, फटी हुई जीन्स पहन रहे और फास्ट फूड्स पर जा रहे, रेस्टोरेंट्स कल्चर आ गया वगैरह, उस पर उन्होंने वो कहानियां लिखी। तो सब इतने संरसीदा होने के बावजूद जमाने के मिजाज, नौजवान नस्ल के मिजाज और मुआशरती तब्दीलियों को जिस आसानी से उन्होंने कबूल किया, शायद ही उर्दू अदब की तारीख में कोई दूसरा आदमी हो जिसने उन चीज़ों को उस तरह तस्लीम कबूल किया और उन पर लिखा। अच्छा, अगर मुमताज़ मुफ्ती की बात करें तो कुदरतुल्लाह शहाब का ज़िक्र खुद ब खुद आ जाता है। आपको क्या लगता है कि कुदरतुल्लाह शहाब मैं एक बड़े एक बुजुर्ग मैं थे? एक मैं एक इजाफा करूं कि अगर शहाब साहब मुफ्ती साहब का जिक्र करे तो शहाब साहब का आता है या शहाब साहब का जिक्र करे तो मुफ्ती साहब का आता है। पहले तो हमें इस चीज को तय करना होगा, ठीक है ना। जो आपने कहा मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ कि शहाब साहब के जिक्र से मुफ्ती साहब का जिक्र आता है। सच्ची बात है, मेरे लिए मुफ्ती साहब के जिक्र से शहाब साहब का जिक्र है। मैंने बरास्ता मुफ्ती शहाब साहब को ढूंढा। बहुत सारे लोगों ने शहाब साहब के रास्ते से मुफ्ती साहब को ढूंढा, लेकिन मैं इस हवाले से तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने मुफ्ती साहब के रास्ते से शहाब साहब को ढूंढा, वरना मुझे शहाब नामे का कोई पता नहीं। ठीक है, तो शहाब साहब का क्या रोल है रूहानियत में, ज़िंदगी में, राइटिंग्स में? मुफ्ती साहब की जिंदगी के अगर हवाले से देखा जाए तो शहाब साहब उनके लिए तो एक भारी पत्थर साबित हुए कि मुफ्ती साहब तकरीबन आप कह लें कि 60 की दहाई के बाद मुफ्ती साहब की जिंदगी का जो भी रास्ता था वो उस भारी पत्थर को छूकर गुजरता था। लब्बैक देख लीजिए, अलख नगरी देख लीजिए, शहाब साहब पे मुतफरिक उनके मज़ामीन देख लीजिए, इवन तलाश देख लीजिए। और उसके बाद मुफ्ती साहब को जो है नफ्सियात से या दुनियावी इल्म से थोड़ा सा जो उनका बाद में आता में नजर, वो शहाब साहब की वजह से ही हुआ। अब बतौर शहाब साहब जो अदीब हैं उनके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी चीज सारे ही जो है वो उनकी तहरीर के कायल है, उनके बयानिए के कायल है, उनके अल्फाज के बर्ताव के कायल है। माजी हो गए, नफसाने हो गया, या खुदा पर तो अस्करी साहब जैसे आदमी का शानदार मजमून है। फिर मुमताज शीरी ने उस या खुदा पर बहुत अच्छा मजमून लिखा। और शहाबनामा जो है उसने बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया। हमारे बहुत सारे फिर जो ब्यूरोक्रेट्स या जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने उन चीजों उस तर्ज तहरीर को अपनाने की कोशिश की, मगर वो उस तरह से लिख नहीं सके। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाद में उस तरह से लिखने की कोशिश की। अच्छा, जब आप मुफ्ती साहब के हवाले से बहुत से लोगों से मिलते हैं, क्या आपने इतनी कोशिश की शहाब साहब को समझने की भी, या मुफ्ती साहब आपकी सेंटर ऑफ अटेंशन में ज़्यादा रहे? नहीं, मुफ्ती साहब देखिए, मुफ्ती साहब उर्दू अदब में मेरा पहला इश्क थे। और पहला इश्क कच्ची उम्रों के इश्क ऐसे ही होते हैं ना वो, लेकिन उसके बाद आप कई और इश्क करते हैं लेकिन अपने पहले इश्क को नहीं भूलते। तो मुफ्ती साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मुफ्ती साहब मेरा अदब के हवाले से पहला इश्क थे। उसके बाद मैंने और बेशुमार इश्क किए, बेशुमार लोगों को पढ़ा, लेकिन मुफ्ती साहब के जो था सह उससे मैं निकल नहीं सका। अब मैं आपको दो चार चीजें बताता हूँ जो आपने सवाल किया कि मुफ्ती साहब के हवाले से मैं किन किन लोगों से मिला। मुफ्ती साहब के हवाले से मैं अतिया मजूद से मिला, जिनका अलबैक में भी जिक्र है और जिनका अलख नगरी में भी जिक्र है। आप दोस्तों ने पढ़ रखा, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, सॉरी। मैंने उनका नंबर जो है
वो मुफ्ती साहब की बेगम इकबाल बेगम से लिया। मैंने फोन किया उन्हें, जब मुझे इकबाल बेगम ने उनका नंबर दिया तो उन्होंने कहा तू की करना है, वो तो उस वेले भी बहुत थोड़े लोग नाल मिलती सी, ये इकबाल बेगम ने मुझे कहा। तो मैं चुप कर गया। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने बात कर ली। तो मैंने अतिया मजूद को जैसे ही फोन किया, उन्होंने हेलो मेरा नाम पूछे बगैर, यकीन करिए मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा, मेरा नाम पूछे बगैर उन्होंने कहा मुफ्ती साहब के घर वाले तो मेरी शिकायत कर रहे थे ना, उर्दू में। अतिया मजूद ने उर्दू में कहा कि मुफ्ती साहब के घर वाले मेरी शिकायतें कर रहे थे ना। मैं मुफ्ती साहब के हवाले से अतिया मजूद से मेरा राब्ता हुआ। फिर जो इंतहाई दिलचस्प शख्सियत, आप में से बहुत सारे दोस्त उनसे मिले हुए होंगे, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। अहमद बशीर साहब, जिनका मान के नाम से और सुरमा के नाम से उन्होंने खाका लिखा। अहमद बशीर साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने इंतहाई दिलचस्प पाया। वो मुझसे, मैं कहता हूँ मुफ्ती साहब को जितना वो जानते थे शायद मुफ्ती साहब को और कोई नहीं जानता। इशफाक साहब बानो आपस से मेरा राब्ता रहा, लेकिन उनसे मेरी बेतकल्फी की वो सतह नहीं आ सकी। उनके यहाँ रख रखाव बहुत ज्यादा था, वो इंतहाई मेहमान नवाज थे। मतलब मैं जब उनके घर जाता था, बारहा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और एक आध दफा शायद वो भी मेरे यहाँ तशरीफ लाए होंगे। तो एक लंबा चौड़ा मेज सज जाता जिसपे समोसे हैं, दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट। तो मुझे खुद उलझन होती कि ये मैं किस जगह पे मतलब आ गया, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं जितना ये मेरा मान बढ़ा रहे। तो मुझे उनके यहाँ उस तरह मेरी बेतकल्फी नहीं हुई। लेकिन अहमद बशीर साहब से मेरा बहुत एक करीबी तल्लक था। अब इकबाल बेगम का तज़किरा आ गया तो दोस्त मुझे नहीं पता कौन कौन है और कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या इकबाल बेगम का तज़किरा, मुफ्ती साहब के दस्तखत हजारों लोगों के पास नहीं तो सैकड़ों लोगों के पास होंगे। मेरे पास मुफ्ती साहब के कुछ खतूत है जो उनके लिखे हुए और वो कहीं छपे नहीं। मुफ्ती साहब के हाथ के लिखे हुए अफसाने हैं जो छपे, लेकिन अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि छपे हुए और मुसवदे में क्या फर्क है। तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के न्यू हॉस्टल के अदबी पर्चे का मैं मुदीर था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो उसका नाम पतरस था क्योंकि बुखारी साहब उसी हॉस्टल में रहते थे, बाद में प्रिंसिपल बने तो उस पर्चे का नाम पतरस था। मैंने पतरस का जब मैं मुदीर बना तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि इसमें तो मैं गोशा मुमताज मुफ्ती बनाऊंगा। उसमें दो लालच थे, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज के पैसों से इस्लामाबाद की सैर हो जाएगी कि मैं किसी का इंटरव्यू करने जाऊंगा, कुछ कहानियां लेने जाऊंगा। दूसरा, मुफ्ती साहब के बारे में मेरी पर्सनल कलेक्शन में एक और रिसाले का इजाफा हो जाएगा तो उसमें पूरा गोशा मुमताज मुफ्ती होगा। तो वहां मैंने इकबाल बेगम का उस सिलसिले में पतरस के लिए इंटरव्यू किया, मुझसे की बेगम का। वो बोलती गई, मैं लिखता गया। तो मैंने आखिर में उनसे दरखास्त की कि आप मुझे इस पे दस्तखत करके दे दे। तो मुफ्ती साहब के दस्तखत तो कई लोगों के पास मौजूद होंगे, लेकिन इकबाल बेगम का शायद चेकबुक के अलावा या निजी जरूरियात के कागजात के अलावा सिर्फ मैंने ही उनसे साइन करवाए हो। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं कैमरे के सामने करता और आप इसको इसी जरूर। तरह फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये नजर सब दोस्तों का आ रहा है, बेगम बिल्कुल आ रहा है सर, मुमताज बिल्कुल आ मुफ्ती रहा है। इकबाल बेगम, और ये उनका इंटरव्यू। वो बोलती गई, मैं लिखता गया और आखिर में मैंने उनसे दस्तखत करवा ली। ये उनके साथ मेरी तस्वीर भी उसी रोज की जब मैंने इंटरव्यू लिया। उनसे मेरी कई मुलाकातें हैं, इकबाल बेगम से मेरी कई मुलाकातें हैं और बहुत भरपूर किस्म की मुलाकातें। आसिम साहब, अगर ये बता सकें कि इकबाल बेगम क्या कहा करती थी मुमताज मुफ्ती के बारे में। मैंने ये सुना कि वो कहती थी कि जब तक वो हयात थे वो उन्हें समझ नहीं सकी, और मुमताज मुफ्ती खुद कहा करते थे कि इकबाल भाई बेगम बड़ी उनको सख्त हैं। देखिए, एक बहुत करीबी बंदे ने मुझे बताया जो मुफ्ती साहब के घर जिनका रोज आना जाना होता था, करीबी इंसान ने बताया, वो खतून है या मर्द इसको भेद में ही रहने दे, कि मुझ सब के यहाँ विजिटर्स मुफ्ती साहब के लिए बहुत जाते थे, उनसे मिलने के लिए लोग बहुत जाते थे। तो मुफ्ती साहब कहते दो बंदे आए चाय बनाना, तीन बंदे आए चाय बनाना, उन्होंने चाय पी, दो और आ गए दो। तो इकबाल बेगम कह रहे बुढ़े की तेजकी हर वेले तत्ती ही रहती है। मतलब उनकी ज़हनी हकीकत तो इस जवाब में सारी चीजें पूछ जो है वो पिन्हा है, आप खुद समझ लीजिए।
اچھا وہ کیا بتایا کرتی تھی سر، جو خاص طور پہ جو آپ کا یہ انٹرویو تھا اس میں آپ نے کیا سوالات پوچھے؟ ظاہر ہے آپ ان کے اتنا قریب رہے تو کچھ خصوصی سوالات ہوں گے، کچھ جانچنے کی کوشش ہوگی، کیا پوچھا تھا آپ نے اقبال بیگم سے؟ سہیل صاحب، ہمارے یہاں جو بالعموم ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان دوستی قائم نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، تو میں نے جو اندازہ لگایا اقبال بیگم اور مفتی صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی تعلق تھا کہ ان کے یہاں ایک ازدواجی زندگی تو ان کی تھی اور بچے بھی تھے ماشاءاللہ، اور دونوں نے بھرپور رفاقت میں زندگی گزاری، لیکن ذہنیاں مانگی اور سوال کرنے وہ کچھ ان کا نہیں تھا۔ لیکن شہاب صاحب کی وہ بھی بہت ہی قدر کرتے تھے، شہاب صاحب کی وہ بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور انہوں نے اس چیز کا میرے سامنے بھی کئی دفعہ اعتراف کیا کہ جو نقش آپا، نیلو آپا اور سویرا آپا کے رشتے ہیں جن میں دنیاوی معاملات اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے رکاوٹیں تھی، وہ شہاب صاحب کی دعا کے پہلے اور ان کے توجہ دینے سے یہ مسائل ہوئے۔ شہاب صاحب کی اس حوالے سے وہ قائل تھی۔ جی اچھا، شہاب صاحب کی آپ نے بات کی، عطیہ سے، عطیہ تو میرے خیال سے ایک مسٹیریس پرسنالٹی ہیں، جس طرح سے مسٹری باکس تھا، تو ان کے حوالے سے بھی کافی کچھ سنتے ہیں، اعتکاف کی بات سنتے ہیں، باقی چیزیں سنتے ہیں، تو آپ نے کتنا ایکسپلور کیا عطیہ کو؟ دیکھیے، میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، میں نے عطیہ موجود کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن فون پر میری ان سے بارہا ملاقات ہوئی، اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے فون پہ، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے مفتی صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میں نے ان کے یہاں سے آپ کا نمبر لیا، اقبال بیگم نے دیا، ہیلو کرنے کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ میری، تو بہت سارے فون، جب ہمارے فون پر بات ہوتی تھی تو میں چونک جاتا تھا کہ انہیں کیسے پتا چلا۔ مثلا مجھے انہوں نے میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تم یہ پڑھ لینا اور تمہیں 2-3 دن میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ سہیل صاحب، خدا آپ کا بھلا کرے، 2-3 دن تو دور کی بات، میں وہ پڑھا، سویا، مجھے اسی رات خواب نظر آ گیا، یہ مسئلہ اور اس کا یہ حل ہے، وہ ایک علیحدہ کار۔ پھر مجھے ایک اور فون یاد آ رہا ہے، اس وقت یہ موبائل فون اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کسی تھا ہی نہیں یہ چیزیں، اور اس وقت ٹیلی فون بہت بوتھ لگے ہوئے ہوتے تھے جس پر یونٹ ڈراپ ہوتی رہتی تھی، تو جو لوگ کارڈ نہیں لے سکتے تھے وہ اس دکان کے سامنے بوتھ ہوتا تھا، ادھر بوتھ کے نیچے ہی آدمی بیٹھ جاتا تھا، وہ کارڈ دیتا تھا کہ آپ بات کر لیں، اس میں اتنے یونٹ ہے، جتنی یونٹ ڈراپ ہوگی آپ پیسے دے دیں، کارڈ ہمیں دے دیں، صرف یونٹس کے دیں۔ تو میں اسلام آباد میں ہی تھا، اس وقت کورڈ مارکیٹ ہوتی تھی، اور کورڈ مارکیٹ کی باہر والی سائڈ پر ایک یونیفارمز کی دکان تھی، اس کے ساتھ بوتھ لگا ہوا تھا، تو میں نے وہاں فون کیا تھا موجود، اور میں نے ہاسٹل میں رہ کر نئی سگریٹ پینی شروع کی تھی، تو میں نے جیسے ہی ہیلو کیا تو عطیہ موجود مجھے کہتی کہ بیٹا سگریٹ K2 کی ہو یا ڈن ہل کی ہو، دونوں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ اس طرح کی باتیں میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر دوسرے تیسرے فون پر میں خود چونک جاتا تھا، ان میں واقعی تھا۔ اب میں عطیہ موجود کے حوالے سے ان کا شمار بھی میرے کرم فرماؤں میں ہوتا ہے، اور مجھ سے بہت محبت کرتے، محمد دیوان اقبال ان کا نام ہے، اور وہ بھی سول سرونٹ تھے، ریٹائرڈ ہو گئے، شاید وہ سیکٹری فائنانس سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں ہیں، جسے رات لے اڑی ہوا، وہ برق تھا دل کی کتاب کا، ایک ہی مصرے کو توڑ کر انہوں نے 2 کتابوں کا عنوان دے دے۔ اس میں ایک کتاب میں عطیہ موجود کا پورا مضمون شامل ہے، اور دیوان صاحب سے ان کی برسوں برس رفاقت رہی کراچی میں رہتے ہوئے، اور عطیہ صاحبہ ان سے بہت پیار کرتی تھی، جو مضامین اور دیوان صاحب سے گفتگو میں مجھے سمجھ آئی۔ دیوان صاحب سے میری ملاقات البتہ ہے، ان سے عطیہ موجود کے بہت سارے قصے، حکایات اور ان کی زندگی کے واقعات جو ہیں دیوان صاحب سب ان کے چشمدید گواہ، جیسے میں نے بتایا وہ ان کے بہت قریب تھے، اور عطیہ صاحبہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اچھا سر، سرفراز شاہ صاحب کے بارے میں ممتاز مفتی نے لکھا کہ 21ویں صدی کے بزرگ ہیں،
आपने कभी उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, हयात हैं, कैसा पाया उन्हें? मैंने मुफ्ती साहब ने वो लिखा और फिर लिखा कि वो मुझसे भूल हो गई। दूसरा मजमून उन्होंने ये भी लिखा, सुहेल साहब आप देखे पूरी बात बताया करे हम जैसे जाहिल लोगों को। तो मेरी कभी सरफराज शाह साहब से मुलाकात नहीं हुई, मैंने उन्हें देखा जरूर है। एक दफा मैं सड़क पर फुटपाथ पे मेलोडी मार्केट के पास जा रहा था, तो उधर से उनकी गाड़ी गुजरी और वो गाड़ी में जा रहे थे। मैंने उनको देखा जरूर, लेकिन कभी मेरी उनसे मुलाकात अच्छा, अक्सी मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुमताज़ मुफ्ती को चूँकि तलाश थी, तो वो बहुत से बाबों से मिलते थे। चाहे वो ये हों, अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हों या और कोई बुज़ुर्ग हों, तो वो वहाँ से गुज़र जाया करते थे, बात करके गुज़र जाते थे, कोई मज़मून लिख दिया, कोई बात कर दी, मगर वो रुके नहीं। तो आज जब हम पढ़ते हैं तो हमें उन बुजुर्गों को कैसा समझना चाहिए? क्या उनकी रूहानियत को समझ कर रुक जाएँ या जिस तरह मुमताज़ मुफ्ती गुज़र गए हमें भी गुज़र जाना चाहिए? अब देखिए मुझे नहीं मालूम कि अक्सी साहब किस हवाले से ये बात करते। शहाब साहब तो मैंने बताया उनके लिए भारी पत्थर साबित हो गए। हमें अपना भारी पत्थर खुद तलाश करना होगा कि किसको हमने ऐसा दरवाजा बनाना है जिसके अंदर से होकर हमें गुजरना है और किसके पास से गुजर जाना है, दस्तक देनी, सलाम दुआ करना है और वापस आ जाना, या कोई ऐसा दरवाजा भी ढूंढना चाहिए कि जिंदगी के सब रास्ते जिसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दुख भी है, सुख भी है, वो उसी रास्ते से होकर गुजरते हो। वो दरवाजा तो हमें खैर ढूंढना पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने ढूंढ लिया था शहाब साहब की सूरत। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो जो मुमताज़ मुफ्ती के करीब लोग रहे उसमें से अब्दाल बेला साहब अभी तक मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाती राय में अब्दाल बेला ने मुमताज़ मुफ्ती को कितना समझा और आगे जो पेश किया वो कितना किस हद तक पेश किया? देखिए बेला साहब भी मुफ्ती साहब के बहुत करीब थे। मैं बेला साहब के नाम एक और के साथ एक और नाम भी लेना चाहूंगा, नजीबा आपा का। मैं नजीबा आरिफ की बात कर रहा हूँ। मुझ सबको दोनों लोगों इन दोनों ने बहुत अच्छे करीब से देखा और अपने अपने तौर पर समझा। बेला साहब की किताब मुफ्ती जी है और नजीबा आपा की तो दो तीन किताबें आ चुकी हैं मुमताज मुफ्ती पर। इन दोनों ने अपने नुक्ता निगाह से देखा। अच्छा दिलचस्प बात ये है कि बेला साहब की जो किताब है उसमें बहुत जखीम किताब है। आप सब दोस्तों ने देखी होगी, कमोबेश 1500 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है। और अब उसका दिबाचे में उन्होंने बरसों पहले, दहाइयों, कम से कम एक दहाई से भी 5-7 बरस ऊपर उन्होंने लिखा कि इसकी दूसरी जिल्द आ रही है, तो दूसरी जिल्द अभी तक नहीं आई। 1500 सफ़ात में से 100 सफ़ा जो है वो बेला साहब ने खुद लिखा होगा और 1400 सफ़ात जो है वो दूसरे लोगों के मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नजीबा आपा का जो काम है उसका नोयत और तरह की है। एक तो उनके पीएचडी का थीसिस था, वो एक हम कह सकते हैं कि डिग्री की जो आपने पैरामीटर्स होते हैं आपने उन्हीं के अंदर रह के लिखना होता है। लेकिन जो उनकी बाकी दो किताबें हैं जैसे अकेडमी वालों की किताब शख्सियत और फन की जो सीरीज है उसमें मुमताज मुफ्ती फन और शख्सियत, नजीब, वो किताब भी बहुत दिलचस्प है और सारा काम क्रिएटिव काम है। तो मेरे ख्याल में दोनों ने अपने तौर पे बहुत समझा। लेकिन जिस तरह से डीपली जाके नजीबा आपा ने मुझसे को ऑब्जर्व किया है, मुझे वो और किसी की तहरीर में नजर नहीं आता। बहुत सारे लोगों के बशमूल बेला साहब जिन्होंने मुझसे को बहुत करीब से देखा, वो शायद बेला साहब ने ये किया कि अपने नावल और अफसानों में मुफ्ती साहब को और नामों के साथ और किसी और किरदार की सूरत में पेश कर दियो, तो उसके बारे में तो बहुत हमें थारोली उनको पढ़ना पड़ेगा, तब बात की जा सकती है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बेला साहब के पास। उन्होंने एक दफा मुझे खुद बताया था, बेला साहब मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते कि मुझसे के उन्होंने फिल्में बनाई, उस वक्त ये हाथ वाले कैमरे होते थे, मोबाइल नहीं होता था, और बहुत सारी डायरीज है, खतूत है। तो मैं बेला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन चीजों को छपवाएं ताकि हम जैसे भी देख सके।
اور نجیبہ آپا سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ اکسی کے بہت قریب ہے اور اکسی کے پاس یقیناً خطوط ڈائریز یہ چیزیں اکسی صاحب کے پاس ہے، تو نجیبہ آپا ان کو بہت اچھی طرح مرتب کر کے اور سلیقے سے اس کام کو سامنے لے کر آ سکتی. اچھا، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ دوسرا ایڈیشن تو مفتی جی کا دوسرا ایڈیشن عبدال بیلا صاحب کا آ چکا ہے. نہیں، وہ دوسرا ایڈیشن آیا، سنگ میل نے چھاپا ہے. پہلا فیروز سنز نے چھاپا تھا، دوسرا سنگ میل نے چھاپا ہے. اپ ڈیٹڈ اس کے ورژن ہے سر، دیباچے میں مجھے پتا اپ ہے ڈیٹڈ ورژن ہے جی. 50 صفحے کا اضافہ ہے، لیکن اس کے پہلے ایڈیشن کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دوسری جلد آئے گی، دا سیکنڈ والیوم. اچھا میں اس کی ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں یہ بالکل 1500 صفحات آئے، لوگوں کی تحریروں پر مشتمل ہے. جو بیلا صاحب کے پاس مفتی صاحب کے خطوط ڈائریز اور وہ چیزیں 1500 صفحات پہ وہ دوسری جلد لے ہے، اور اس کا انہوں نے فیروز سنز والے ایڈیشن میں یہ بات آپ نے لکھی تھی. جی بالکل 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ ایک صندوقچہ تھا جو کہ ممتاز مفتی کے گھر پہ موجود تھا، تو وہ صندوقچہ مکمل عبدال بیلا صاحب لے کے گئے تھے، جس میں اس کے ریڈیو کے ڈرامے اور بہت سے افسانے ایسے ہیں جو چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اس بات کی تو ہم بھی تائید کریں گے اور گزارش کریں گے عبدال بیلا صاحب سے کہ وہ اس کو جلد از جلد چھپوائیں. جی. اچھا تو عاصم صاحب مصحف کی ایک آخری تحریروں کے سب، حوالے سے جی جی پلیز پلیز. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب کی تحریروں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو میں صرف میری لائبریری گھر کے دوسرے حصے میں اور میں دوسری جگہ بیٹھا تو ایک کتاب میں لے کر آیا جو مفتی صاحب کی پہلی کتاب ہے اور اس کا پہلا ایڈیشن ہے، افسانوں کا پہلا مجموعہ اور اس کا پہلا ایڈیشن ہے. یہ مکتبہ اردو نے چھاپی انکئی، اور یہ چھپی ہوئی ہے جی 1900. اس پہ کسی ایک منٹ اینت یہ پڑی ہے خدا جان، ایم افتخار حسین راٹھور کے دستخط ہے جو 1944 5/6/1944 کو ہوئے ہوئے. اب میں کہتا ہوں کہ ایک پورا مضمون مفتی صاحب کی کتابوں کے نام کے سیکوینس پہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب کی پہلی کتاب کا یہ پہلا ایڈیشن ہے جو میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ اگر نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے. اس کا نام میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھ سب کی کتابوں کا جو نام ہے اور اس میں جو سیکوینس ہے افسانوی مجموعہ، اس پہ بہت اچھا مضمون بن سکتا ہے. اس پہلا افسانوی مجموعے کا نام انہوں نے انکئی رکھا اور اس میں دعویٰ کیا کہ میں لوگوں کی ایسی باتیں جو وہ کہہ نہیں سکتے میں وہ بیان کروں گا. آخری مجموعے کا نام انہوں نے رکھ دیا کہیں نہ جائے. اس میں ان کو یہ دعویٰ واپس لینا پڑا کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ باتیں نہیں کر سکتے میں ان کو افسانوں میں کروں گا، مگر افسوس وہ باتیں اس قدر دل خراش اور اداس کرنے والی ہیں کہ مجھ سب کو آخری افسانوی مجموعے کا نام کہیں نہ جائے رکھنا پڑا اور اس میں لکھا کہ میں وہ باتیں نہیں کہہ پایا. تو مجھ سب کے افسانوی مجموعوں کے نام کا جو سیکوینس ہے اس پر بہت اچھا مضمون بن سکتا ہے. ہمارا کوئی محقق نقاد اس پہ لکھے، بہت دلچسپ. آپ کے دل کے قریب ممتاز مفتی کی کون سی تحریر یا کتاب ہے اور کیوں؟ مجھے دیکھیں، میں علی پور کا ایلی کو ہی اس حوالے سے ٹاپ آف دا لسٹ رکھوں گا، اور میں مجھ سب کے لکھا ہوا ایک لفظ تقریباً پڑھا ہوا ہے. اس کا وجہ یہ کہ اگر علی پور کا ایلی میں پڑھتا تو میں ممتاز مفتی سے کیسے متعارف ہوتا. اگر ممتاز مفتی سے متعارف نہ ہوتا تو جن 5-6 لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جس میں آپ خود سہیل طائی صاحب شامل ہے، اگر مفتی صاحب سے میرا نہ تعارف ہوتا اور میں ان کو نہ پڑھ سکتا تو میں آپ جیسے اچھے دوستوں کو کہاں ڈھونڈتا پھرتا. بہت محبت سر آپ کی. ایک آخری سوال اور اوپن اینڈڈ سوال ہے، اکسی مفتی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اکسی مفتی کے بارے میں مجھ سے وہ بہت پیار کرتے، مجھ سے بہت محبت کرتے. میرے لیے وہ کئی حوالوں سے قابل احترام ہے.
सबसे बड़ा वाला तो वो मुमताज मुफ्ती के बेटे, वो शहजाद के बेटे है, मतलब शहजाद का जो एक तलीसमाती जो किरदार मुफ्ती साहब ने अलीपुर के एली में पेश किया, पढ़ के कौन उसका गर्विदा नहीं होता। और फिर मुफ्ती साहब ने क्या किया कि अलख नगरी में हर उस बंदे की तस्वीर लगा दी जिसका तज़किरा अलीपुर के एली में था, लेकिन शहजाद की तस्वीर नहीं लगाई। वो सब ऐसी बेशुमार चीजें करते हैं कि देखने वाला जो है वो पढ़ने वाला देखता ही रह जाए। तो मैं अक्सी साहब के को मैं कई हवालों से बहुत अजीज जानता हूँ। एक तो उन्होंने जो भी मुमताज मुफ्ती के हवाले से उनके पास गया, उन्होंने उसको सीने से लगाया, घर के दरवाजे खोले, जहां तक मुमकिन हो सके उसकी उन्होंने मदद की है। फिर पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से जो उनका काम है, खसूसन फोक म्यूजिक के हवाले से, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ एक भेरा कस्बा है और वहां पर एक फोक सिंगर होते थे फातिमा, उसका अक्सी साहब ने ढूंढा और उसकी जो वाहिद रिकॉर्डिंग स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है वो अक्सी साहब ने उसकी की। तो सबका, और फिर पाकिस्तानी इस तरह लोग फोक सिंगर्स के हवाले और फिर पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से जो उनकी खिदमत है वो बिल्कुल भी फरामोश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इंशाल्लाह गुजरात में अनकरीब एक महफिल होगी। तमाम लोगों की, ये जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, इनकी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ लाएं और आपसे दोबारा बिलमुशाफा मुलाकात भी हो और गपशप भी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।